our next preparation is from amides. The general formula is R C double bond O NH2. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या CONH2 ग्रुप होता है वो क्या कहलाते हैं? अमाइड्स. अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइन. अमाइड्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग अ रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. एक रिएजेंट हमको यूज करना है, कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब इसमें हमको क्या मिलते हैं? प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिंपल अमाइड्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सिंपल अमाइड्स को रिड्यूस करें तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट प्राइमरी अमाइंस. सो हियर वन एग्जांपल that is given over here is propanamide. Propanamide have CONH2 group. So now what will happen if I will use lithium aluminum hydride? तो lithium aluminum hydride का यूज जब हम करते हैं तो this C double bond O group gets converted into CH2 group. So now let us take one more example. Suppose I am having R C double bond O NH2 group. That is an amide. ये क्या है? एक amide है. So if I will use here lithium aluminum hydride, what will happen? This CO group will get converted to CH2 group and rest of the part will be similar. Here it is an amide, now here it is an amine. amide का amine में conversion हो जाता है और यहाँ से क्या कम हो जाता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमाइड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइन लाइसिस. हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी? अमोनोलाइसिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं. अमोनोलाइसिस क्या होता है? व्हेनेवर एनी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मीन्स RX, व्हेनेवर एनी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया. जब भी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? अमोनिया के साथ होती है. तो यहाँ पे क्या होता है? अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है. एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अमाइंस. सो नाउ सपोज वी आर हैविंग एन एल्किल हैलाइड RX. हमारे पास एल्किल हैलाइड क्या है? कोई RX है. And we are having ammonia. So as you know that whenever any halide directly linked to carbon chain, this will have partial positive charge and this will have partial negative charge. And you know ammonia have a single lone pair of electron. What will happen? This R is electron deficient. This will transfer electron and this bond will break. When the process will go on in this manner, when the lone pair of nitrogen will attack on this carbon and the bond between carbon and halogen will break, then it will form RNH2 and plus HX, and this is called an amine, and this is acid, that is called halogen acid. So now here let us take one more example. The example that is given in this particular reaction is ethyl bromide. This carbon will have partial positive charge on itself and this will have partial negative charge on itself. In similar manner, when SN2 reaction will take place, this will attack at this particular carbon and this bond will break from here and this will get converted into CH3, CH2, NH2 and this halogen acid will be removed. Here in this method we have formed only प्राइमरी एमाइन. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है? प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन हुआ है. प्राइमरी एमाइंस कैन फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एमाइंस. प्राइमरी एमाइंस भी फर्दर रिएक्ट करके हमको क्या बना सकती हैं? सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकती हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ these quaternary, secondary and tertiary amines will form. According to NCERT, whenever NH3 react with RX, तो क्या होगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ये यहाँ से
ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, HX निकल जाएगा और क्या बनेगा, RNS2. That is your primary amine. Whenever this RNS2 will attack at next alkyl halide, the similar reaction will take place and this will form R2NH. Again, this will react with RX और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, HX का फॉर्मेशन हो जाएगा. The similar reaction will take place and this will form R3N. Again, it will react with alkyl halide. A similar reaction will take place and this will form R4NX. So now, in first step, primary amine is formed. In second step, secondary amine. And third step, tertiary amine. And this is quaternary amine. Quaternary ammonium salt. इसका फॉर्मेशन हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट, हियर नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ एंड हैलोजन इज द काउंटर आयन. सो दिस इज द अमोनोलाइसिस रिएक्शन इन विच वी कैन गेट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन as well as quaternary ammonium salt. That is the last step of this ammonolysis reaction. यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं, in ammonolysis we can get primary amine, secondary amine, tertiary amine as well as quaternary ammonium salt. तो इसमें हम लोग quaternary ammonium salt का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं. So now let us talk about next reaction, that is Hofmann bromamide degradation. So now our next topic is Hofmann degradation of amides. Amides, यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा वर्ड आया है, amide. Amide, the compound that have CONS2 group. जिनके पास क्या होता है, ये CONS2 ग्रुप होता है, वो क्या कहलाते हैं, अमाइड्स कहलाते हैं. दैट मीन्स दिस इज एन अमाइड. सो नाउ whenever amide react with sodium hypohalide, जब भी अमाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ होती है, तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है. और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहलाती है. दिस सोडियम हाइपोहैलाइड फॉर्म्ड व्हेन NaOH रिएक्ट विद Br2. जब NaOH Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOX का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड कहते हैं. सो नाउ इसमें होता देखो क्या है, इन दिस रिएक्शन अमाइड्स का जो CO ग्रुप होता है, दिस गेट एक्सपेल्ड. अमाइड का CO ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है. दिस कंप्लीट CO ग्रुप विल बी रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी अटैच्ड. यहाँ से देखो, ई CO ग्रुप जब रिमूव हो जाएगा, देन द कंपाउंड दैट इज रिमेन CH3 CH2 NH2 and here we have get CH3 CH2 NH2 and the rest byproduct is NaBr, Na2CO3 and H2O. So in generalized form I can say that in Hofmann bromamide degradation, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन क्या होता है, 1 लेस कार्बन का प्रोडक्ट हमको मिलता है. सपोज आई एम हैविंग अ जनरल, आई एम गोइंग टू टेल यू अ जनरल एग्जांपल, दैट इज सपोज वी आर हैविंग RC double bond O NH2 group. Whenever this reacts with NaOX, तो देखो क्या होता है, this CO group will be removed from this particular compound and this will form RNS2. तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में -1 क्या हो गया, C, एक लेस कार्बन का हमको अमाइन मिलता है. बट इन लास्ट केस whenever I have told you the reduction with lithium aluminum hydride, we get the product with the same number of carbon as in reduction of amide by lithium aluminum hydride,
we get equivalent number of carbon in reactant as well as product. But in Huffman bromamide degradation, we get one less carbon in product. So this is your Huffman bromamide degradation. इसको मैं सिंपली बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे में क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिमूव दिस CO पार्ट एंड यू नीड टू अटैच द रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज. इस CO पार्ट को रिमूव करके रिमेनिंग पोर्शन को एज इट इज जैसे भी है उसको अटैच कर दो. यू विल गेट योर प्रोडक्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट रिएक्शन, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस. हमारी जो लास्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की हमको बात करनी है. नाउ लास्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एन अमाइन. अमाइन का लास्ट प्रिपरेशन मेथड जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड मेथड. गैब्रियल थैलीमाइड मेथड से हम लोग कैसे अमाइंस को प्रिपेयर करते हैं. तो दिस इज द थैलीमाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइड. Whenever thalidomide react with aqueous KOH, or we can say KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, then what the reaction will take place? Firstly, the removal of this hydrogen will take place. It means the minus H2O will be removed and this position will be occupied by K. After that, N is having negative charge and K is having a positive charge in this. पोटेशियम थैलीमाइड का जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज. एंड हियर आई हैव टेकन एन एल्काइल हैलाइड. यहाँ पे क्या लिया है, एक एल्काइल हैलाइड लिया है. और एल्काइल हैलाइड में मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को कि कार्बन कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और हमारे हमेशा हाइलाइट्स कैसे होते हैं, डेल्टा निगेटिव. तो हियर SN2 रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड Cl विल बी रिमूव्ड. हियर सब्सटीट्यूटेड, हमको क्या मिल गया, सब्सटीट्यूटेड थैलीमाइड मिल जाता है. इसके रिएक्शन फिर किसके साथ करा देते हैं, इधर KOH और H2O, और वी कैन यूज NaOH. NaOH का भी यूज कर सकते हैं. तो जब NaOH का यूज करते हैं तो देखो सिंपल सा व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू ब्रेक दीज टू बॉन्ड्स. इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमको क्या बना देना है, अमाइन का फॉर्मेशन कर देना है. एंड हियर सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड विल फॉर्म. थैलिक एसिड का सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस. अगर मैं इसको सिंपल स्टेप्स में लिखूं तो देखो करना क्या है. नाउ अकॉर्डिंग टू NCERT, you need to remove this hydrogen and this hydrogen will be replaced by potassium. Here potassium will have delta positive, potassium will have positive charge and nitrogen will have negative charge on itself. And here we will take an alkyl halide. Alkyl halide लेते हैं. अब इस पर रिएक्शन क्या होती है, this lone pair of nitrogen will attack to this R group and removal of this X will take place. And what here will form, it will form NR. किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, NR का फॉर्मेशन हो जाता है. तो जो NR का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसकी रिएक्शन फिर किससे होती है, दिस NR रिएक्ट्स विथ NaOH. इसकी रिएक्शन किससे होती है, NaOH से रिएक्शन होती है. और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ऐसे ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन इसको मिलता है, ये वाला पार्ट ब्रेक होने पर एक हाइड्रोजन इसको फिर से मिल जाता है. तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है. और यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट बचता है उसमें यहाँ पे क्या आ जाता है, COONA और COONA का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड एंड प्लस प्राइमरी अमाइंस. इन दिस मेथड वी विल गेट ओनली प्राइमरी अमाइन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस मेथड में हम लोग केवल प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. रीजन, अगर रीजन की बात है तो देखो यहाँ पे हियर SN2 अटैक इज टेकिंग प्लेस. कौन सा हो रहा है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिल बाइमोलिकुलर. और सब्सटीट्यूशन केवल किस पे सबसे अच्छा होता है, 1 डिग्री पे, उसके बाद किस पे 2 डिग्री पे, उसके बाद 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है. दैट मीन्स द बेस्ट अमाइन दैट वी कैन प्रिपेयर हिज इज प्राइमरी अमाइन. बाय द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं. Okay, so now the preparation of amines finished. Now in next lecture I will talk about the chemical properties of amine.